Assalamualaikum class 6. How are you two all? I hope you are fine. Please open your history book. Page number 11. Chapter number 3. Chapter number 3. Name the Indus Valley Civilization. The Indus Valley Civilization. Before this reading, you have to your lead pencil in your hand and underline those line or word which I will tell you. Understand? Because in this chapter we will do only MCQs. इस चैप्टर में से सिर्फ हमने MCQs ही रेडी करने हैं, ठीक है? Now let's start. Nearly 5,000 years ago, an ancient civilization exists on the banks of the river Indus in what is present-day Pakistan. 5,000 years ago, an ancient civilization found on the bank of the river. Nowadays, it is also present in Pakistan. This old and rich civilization is known today as the Indus Valley Civilization. The ancient civilization which is found 5,000 years ago is known as Indus Valley Civilization. What is the name of ancient civilization? Indus Valley Civilization. Yes, this old and rich civilization is known today as the Indus Valley Civilization. Please underline this line. Yes, the old and rich civilization is known today as the Indus Civilization. It means the civilization which is found 5,000 years ago on the bank of the Indus River is known as Indus Valley Civilization. Sometimes it is also called the Harappa Civilization. Another name of Indus Valley Civilization is Harappa Civilization. It means the ancient civilization which is found 5,000 years ago is known as Indus Civilization and हड़प्पा सिविलाइजेशन टू. यानी 5,000 ईयर्स अगो पहले जो एंशियंट सिविलाइजेशन फाउंड हुई थी इंडस रिवर के करीब, वो पाकिस्तान में भी है. उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. यानी एंशियंट सिविलाइजेशन के टू नेम हैं. One is Indus Valley Civilization, another name is Harappa Civilization. Please underline. It is also called the Harappa Civilization. As archaeologists, who are archaeologists? Archaeologists, the person or people who search history and found the remains of the places or things. आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सर्च करते हैं हिस्ट्री के बारे में और जितनी भी प्लेसेस उनको मिलती हैं वहाँ पे जो रिमेन्स होती हैं. रिमेन्स मीन्स जो वहाँ के रहने वाले लोग यूज़ करते रहे, जो भी फर्नीचर या कुछ भी चीज़ें जो यूज़ करते रहे, उनकी रिमेन्स, बच जाने वाली चीज़ें वो ज़मीन में दब जाती हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट उनको फाइंड करते हैं और फिर उस जगह का कल्चर फाउंड करते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग कैसे होंगे और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो किस पे बेस करती है. अंडरस्टैंड? आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पर्सन हु सर्च buried places or things.
As archaeologists in the 1920s found the remains of two large cities, Harappa in the Sahiwal district of Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. What they found? Archaeologists found remains of two large cities. One is Harappa, another is Mohenjo-daro. And where is Harappa? Harappa is in Sahiwal district and Mohenjo-daro in Sindh district. Please underline Harappa in Sindh district of Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. Harappa is in the Sahiwal district of Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. Please underline Harappa in the Sahiwal district of Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. Have you underlined? Okay. Since then 2300 sites of Harappan culture have been found in the areas to the east and north of the river Indus. Beside of ancient civilization, 2300 sites more are found on the bank of Indus River. And what is the direction? East and north. Since then 2300 sites. It's mean those 2300 और places हड़प्पा कल्चर के बेस पर वहाँ पे उनको मिली. कहाँ पर? इंडस रिवर के ईस्ट एंड नॉर्थ एरियाज में. यानी एंशियंट सिविलाइजेशन जो फाउंड की गई 5000 ईयर्स अगो, वहाँ पर इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से एक सिविलाइजेशन फाउंड हुई और आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 more cities फाउंड की, हड़प्पा इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट एंड मोहेंजोदाड़ो इन सिंध. इनके अलावा हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो के अलावा भी 2300 और जगह मिली. ठीक है, ऑफ हड़प्पन कल्चर, जिनका कल्चर कैसा था? सेम हड़प्पन जैसा. ठीक है, और ये साइट्स रिवर इंडस के ईस्ट एंड नॉर्थ एरियाज में है. अनदर साइट डिस्कवर्ड रिसेंटली is Mehergarh in Balochistan. Another site discovered recently in 1974 is Mehergarh in Balochistan. Now they discover another site. The name is Mehergarh. And where is Mehergarh? Mehergarh is in Balochistan. Archaeologists found another place, Mehergarh in Balochistan, recently in 1974. When they searched the culture of Mehergarh, they found that this is the oldest city of Balochistan than Indus Valley civilization. It means कि जो मेहरगढ़ 1974 में उनको फाउंड हुई, वो उसकी हिस्ट्री इंडस सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा ओल्ड है. डेटिंग बैक टू 7000 to 5500 BCE, बिफोर कॉमन इरा. बिफोर कॉमन इरा मीन्स द एब्रिवेशन ऑफ BCE इज बिफोर कॉमन इरा मीन्स द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. ये वो दौर है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, तब मेहरगढ़ मौजूद था. 7000 to 5500 BCE. It is even older than मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा. यानी ये हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो से भी पुराना सिटी है, जो कि 1974 में बलोचिस्तान
सर्च किया गया। किसने किया? आर्कियोलॉजिस्ट ने। ठीक है। The Indus Valley civilization flourished along the banks of the river Indus mainly between 2600 C and 1300 BCE. Now they are going to tell us that Indus Valley civilization flourished along the banks of the river Indus mainly between 2600 and 1300 BCE। अब वो हिस्ट्री बता रहे हैं इसकी। इंडस सिविलाइजेशन 2600 से लेके 1300 BCE के बिटवीन है। बिटवीन मीन्स दरमियान में। ठीक है। इसकी डेट क्या है? 2600 से 1300 BCE के बिटवीन इसकी सिविलाइजेशन वहाँ पे रिवर इंडस पे फ्लोरिश्ड हुआ। द रिवर इंडस स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड देन फाइंड्स इट्स वे डाउन साउथ टू फ्लो इनटू द अरेबियन सी। द रिवर इंडस स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान। इट मीन्स कि जो रिवर इंडस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पाकिस्तान का अगर आप मैप देखें तो उस मैप का जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पे वहाँ से ये स्टार्ट होता है उन माउंटेन से जो कि नॉर्थ एरिया में। ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्थ में जो माउंटेन्स है वहाँ से रिवर इंडस स्टार्ट होता है and then finds its way down south to flow into the Arabian Sea। फिर उसने अपना रास्ता फाइंड किया। ठीक है। रास्ता फाइंड करता हुआ वो डाउन यानी साउथ की तरफ आया। डायरेक्शन का पता है ना आपको? ये यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इट्स मीन्स कि पाकिस्तान के नॉर्थ से इंडस वैली स्टार्ट हुआ और फ्लो करता हुआ वह नीचे साउथ की तरफ आया और वो कहाँ पर गया? इनटू अरेबियन सी। यानी कि अरेबियन सी इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी पाया जाता है। यानी इंडस वैली का जो रिवर है वो नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और फ्लो करता हुआ साउथ में अरेबियन सी तक आ गया। ठीक है। उसमें जाके वो मिल गया। द रिवर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एंड फर्टाइल सॉइल फॉर क्रॉप्स। नाउ द इंडस, please underline first of all this line. The river Indus start from the mountain of north of modern day Pakistan, north of modern day Pakistan, and finds its way down south to flow into the Arabian Sea। यह आपको MCQs में आ सकता है कि जो इंडस वैली, जो इंडस रिवर है वो कहाँ से फ्लो करना शुरू हुआ और कहाँ पे जाके वो गिरा, यानी कि किसके साथ वो जाके मिला। नॉर्थ से वो स्टार्ट हुआ और अपना रास्ता तलाश करता हुआ वो साउथ एरिया में जाके अरेबियन सी के साथ मिल गया। द रिवर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एंड फर्टाइल सॉइल फॉर क्रॉप्स। अब रिवर क्या कर रहा है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन रिवर्स के? ट्रांसपोर्ट का, एंड वाटर, और पीने के लिए भी यूज़ किया जाता था, एंड फर्टाइल सॉइल फॉर क्रॉप्स। फर्टाइल सॉइल मीन्स जरखेज मिट्टी, फॉर क्रॉप्स फसलों के लिए। द वाटर विच इज़ प्रोवाइडेड
by river Indus is beneficial for transport, water, drinking water and fertile soil for crops. The rich soil of river made agriculture easier by the rich soil of the river made agriculture easier. ये soil, इस soil से क्या हुआ, ये जो fertile soil थी हमें रिवर इंडस ने प्रोवाइड की थी, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ईजियर साबित हुई। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी सॉइल थी, मट्टी थी, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी। नाउ टर्न योर पेज। बाय गिविंग हाई यील्ड क्रॉप्स, उस सरफेस मिट्टी से क्या होता था, बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप इंडस रिवर क्यों बेनिफिट था, वाई द इंडस रिवर इज बेनिफिट फॉर इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, या व्हाट आर द वेज इंडस रिवर टू एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कौन कौन से वेज हैं, व्हाट आर द वेज, कि जिस तरह से रिवर उनको फ़ायदा पहुंचाता रहा। यानी कि आपको पता है कि जितना भी समंदर का पानी या दरिया का पानी होता है वो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है क्रॉप्स के लिए और पीने के लिए भी प्रोवाइड करता है पानी, एनिमल्स के लिए भी करता है, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए भी करता है। ठीक है, तो द रिवर प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एंड फर्टाइल सॉइल फॉर क्रॉप्स। द रिच सॉइल ऑफ द रिवर मेड एग्रीकल्चर ईजियर बाय गिविंग हाई यील्ड क्रॉप्स। उस मट्टी से अच्छी खासी फसलें उगाई जा सकती थी। This feature was not uncommon because other civilization had sprung up around rivers such as the Nile in Egypt. But इसके जितने भी फीचर्स थे वो अनकॉमन थे, यानी कि एक जैसे नहीं थे। Because other civilization had sprung up around rivers such as Nile and Egypt. क्योंकि जो अदर सिविलाइजेशंस थी वो रिवर नाइल जो कि इजिप्ट में वाक़या है वहाँ पे भी रहते थे। ठीक है, वहाँ की मट्टी और वहाँ की जितना भी पानी था उसकी जितने भी फ़ायदे थे वो अलग थे और इंडस रिवर के फ़ायदे अलग। टिग्रस एंड यूफ्रेट्स इन मेसोपोटामिया, these are the examples of another civilization which is founded near in river Nile, Tigris and Euphrates in Mesopotamia and the Yangtze River in China. The Sumerian culture of Mesopotamia was discovered in the 1890s and the ancient civilization of China in the 1970s. Underline these words: Nile in Egypt, Tigris and Euphrates in Mesopotamia, and the Yangtze River in China. ये MCQs आपको आ सकता है कि नाइल रिवर किधर है और टिग्रस यूफ्रेट्स किधर है, मेसोपोटामिया में, और यांगटीज रिवर इन चाइना। द सुमेरियन कल्चर ऑफ मेसोपोटामिया वाज डिस्कवर्ड इन द 1890s। द सुमेरियन कल्चर कब फाउंड हुआ? इन 1890s। व्हेन वाज द मेसोपोटामिया कल्चर वाज डिस्कवर्ड? in 1890s, and the ancient civilization of China is 1970. When in China civilization found in 1970. Understand?
This paragraph is important for MCQs. MCQs. They can ask question about river Nile, Tigris, Euphrates, Yangtze, and they also can question Sumerian about Sumerian culture and ancient civilization of China, when and where they are. Today is your diary is reading and underline the important words or lines to make MCQs. Please learn it by heart. Allah Hafiz.